Hello, friends. So today we will do some questions. Last lecture में हमने ये वाला आर्टिकल किया है जिसमें हमने ये प्रूव करा दिस ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ r dot comma r double dot comma triple dot is equal to s dot raised to 6 into triple product of r dash r double dash r triple dash. Okay, now so by this using the previous theorem and we get a solution formula. Okay, now today we do some questions. You can in exam you can ask for doing these small results. So r dot is equal to s dot t, r double dot is equal to s double dot t plus kappa k s dot square n and r triple dash triple dot like this. And from these expressions we can reduce binormal, normal. Okay, and after that this kappa square can be drawn from these three results at the top also. So let's do by one by one. First of all, r dot, r dot means r is differentiable with respect to u. So this is equal to by using chain rule. ds से हमने डिफरेंशिएट करा और ds से हमने मल्टीप्लाई करा, इक्वल से मल्टीप्लाई डिवाइड करा. So after that you get r dash is equal to r dash into s dash. So r dash means t, so t dot s dash होगा. उसी तरह से अगर अब डबल डॉट निकालना है तो हम r डॉट निकाल सकते हैं, इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे रिस्पेक्ट टू u. सो वही यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा के so derivative of first that is s double dot second function as it is plus derivative first function as it is and derivative of t respect to u करेंगे बट चेन रूल लगा देंगे तो respect to s करेंगे तो डैश आएगा t dash and into ds over du that is s dot. So और नाउ हम यहाँ पे फेवरेट फॉर्मूला लगा लेंगे t dash के लिए. t dash is equal to kappa n. So after using this we get this result. So finally triple dash triple dot निकालने के लिए अब यहाँ पे फिर सेकंड जो हमने फाइंड आउट कर रखा है r डबल डॉट इसी को डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू u. तो यहाँ पे भी हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सेकंड को करना पड़ेगा. फर्स्ट टर्म में दो टर्म्स हैं, यहाँ पे तीन है, तो वेरी केयरफुली k का भी डिफरेंशिएशन होगा और s डॉट केयर का भी और n का भी. सो आफ्टर यूजिंग दिस तो यहाँ पे हमने पहले इस टर्म का डिफरेंशिएट किया. सो फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया, सेकंड एज इट इज, फिर फर्स्ट एज इट इज सेकंड का तो u का t का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू u हुआ, चेन रूल लगा दिया, रिस्पेक्ट टू s करा तो t डैश आया और यहाँ पे ds ओवर du आया. सो दैट इज s डॉट. फिर हमने इस टर्म को लिया तो यहाँ पे हमने इसको एक टर्म मान लिया सेकंड को और इसको फर्स्ट मान लिया. तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड एज इट इज, नाउ द फर्स्ट एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड. सो यू कैन इजीली सी this come out. And after that using favorite formula for t dash and for n dash, after substituting these formulas finally we get this one. So this is the requirement we want to do that. Now we have to find some dot products and cross products. So finally I summarized it here. So r dot, r double dot, and r triple dot.
So if we take the cross product of r dot and r double dot, so what do we get? T cross in the left hand side, T cross P is 0 and T cross N is equal to B. So what do we get? S dot into kappa S dot square. So what do we get? Kappa S dot Q. So from here we can find by B. So that is B equals. And now if we want to find N, नॉर्मल फाइंड आउट करना है यहाँ से. सो हम इस टर्म को कैंसिल कर देते हैं. सो ऑब्वियस है फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एस डबल डॉट से और सेकंड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एस डॉट से. सो वी मल्टीप्लाई सेकंड बाय एस डॉट एंड फर्स्ट बाय एस डबल डॉट और हमने माइनस कर दिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सो यहाँ से फिर ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, टी वाली कैंसिल हो जाएगी. सो व्हाट वी लेफ्ट विथ in the left hand side s dot r double dot minus s double dot r dot is equal to, in this side there will be kappa और इस टर्म को हमने किससे मल्टीप्लाई करा था s dot से. सो यहाँ पे s dot q बन जाएगा. सो we get n. Very simple calculations you can see. थोड़ा सा चेन रूल लगाते टाइम पर ध्यान रखना. नाउ if we squaring the second term का अगर हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर मींस डॉट प्रोडक्ट between both side dot. So squaring of both this first term, इसी टर्म को दो बार लिख दिया हमने. So इसका डॉट प्रोडक्ट s के साथ s dot t is 1 आ जाएगा. So that is s double dot स्क्वायर हो जाएगा. इसका इसके साथ डॉट लेंगे तो 0 हो जाएगा. फिर हम इस टर्म का t के साथ डॉट लेंगे तो 0 हो जाएगा. n dot is 1. So kappa into kappa square and s dot square s dot square s dot power 4. तो यहाँ से हम kappa square k square फाइंड आउट कर सकते हैं. इस टर्म से k इस तरह और इस डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया. फाइनली अगर टॉप फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है हमने, ये निकाला हमने डॉट क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे आर ट्रिपल डॉट से. तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे सो व्हाट वी गेट, राइट हैंड साइड में यहाँ पे बी बाई नॉर्मल है और यहाँ पे राइट हैंड साइड में टी भी है, एन भी है और बी भी है. तो जैसे डॉट प्रोडक्ट लेंगे बी डॉट टी 0 हो जाएगा, बी डॉट एन 0 हो जाएगा एंड बी डॉट बी आएगा 1. ओके, सो दैट्स व्हाई वी इन द राइट हैंड साइड वी get only this coefficient into this coefficient, nothing else. So what we get? So we get kappa square tau s dot power 6 is equal to this. और ये you see ये आपकी वेरीफाई भी होगी चीज, हमने पहले भी ये फाइंड आउट कर रखा है. ठीक है, so this is the result we need here. Okay, finally you see if we want curvature torsion of a curve, we need derivatives of curve r, whether it is with respect to u or with respect to s is depending upon कि कर्व आपकी कर्व इसको डिपेंड करती है. अगर फर्स्ट केस में सपोज r is depending upon parameter u is parameter. ओके, अगर यहाँ पे u पैरामीटर है तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं डॉट वाले यूज करेंगे.
तो अभी हमने फाइंड आउट करा आर डॉट डबल क्रॉस आर डबल डॉट, ये भी फाइंड आउट करा। और अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो यहाँ से बी का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, सो व्हाट वी गेट कप्पा डॉट एस यूज। तो यहाँ से देखो कप्पा फाइंड आउट कर सकते हैं, कर्वेचर हम इस फॉर्म में से find out कर सकते हैं। अब आपको ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। सो कप्पा इज इक्वल टू दिस, तो डेरिवेशंस अभी आपको बता दी कैसे ड्राइव हुआ है। नाउ द नेक्स्ट आर डॉट का एक्सप्रेशन अभी फाइंड आउट करा हमने, आर डॉट इज इक्वल टू एस और टी। तो यहाँ से अगर हम दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले तो फ्रॉम हियर टी का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो एस डॉट की वैल्यू आती है हमारे पास आर डॉट मॉड। ठीक है, सो यहाँ से एस डॉट, क्योंकि एस डॉट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज ए आर्क लेंथ। सो ये आगे पॉजिटिव होगी, सो डेफिनेटली इसका मतलब इस कप्पा के फॉर्मूले में यहाँ पे एस डॉट को हम रिप्लेस कर सकते हैं आर डॉट मैग्नीट्यूड से। सो फाइनली you get a formula independent of s। तो क्योंकि हमारा जो u है वो जो r है वो u के ऊपर डिपेंड करता है, तो फॉर्मूले में फिर ये s नहीं आना चाहिए, तो फिर हमें s फाइंड आउट करना पड़ेगा। So now we get a formula independent of s, that is magnitude of r dot cross r double dot divided by magnitude of r dot q. Okay, this is another formula we just proved the above article. So from here, this is a s, so you can replace this क्योंकि अगर हमें कप्पा टॉर्सन फाइंड आउट करनी है तो हमें हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ओनली कप्पा भी नहीं आए, ओनली आपका सॉरी कप्पा भी नहीं आए और एस भी नहीं आए, ओनली आर ही दिखे। तो यहाँ से ऐसे करते हैं, यहाँ से हम के की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। सो के इन के इज नथिंग व्हाट इट इज, के की वैल्यू ये है, के इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। अगर इसको हम पुट करेंगे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे s की पावर 6 बन जाएगी और ये कट भी जाएगा, यहाँ पे दोनों काम हो गया, s भी कैंसिल आउट हो गया और k भी रिप्लेस हो गया टर्म्स ऑफ r। सो टॉर्सन का ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ r डॉट r डबल डॉट एंड r ट्रिपल डॉट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r dot cross r double dot string. Okay, so we get the formulas now. If r is depending upon s, that is arc length, तो definitely फिर हमें डेसिस की फॉर्म में सारी चीजें एवेल्यूएट करनी पड़ेगी, अदरवाइज वी एडजस्टेड आवरसेल्फ और पहले हम एस को यू में कन्वर्ट करेंगे या यू को एस में कन्वर्ट करेंगे। सो इससे अच्छा कि हम अलग अलग फॉर्मूले थोड़ा सा डिराइव करेंगे। तो इफ आर इज डिपेंडिंग अपॉन एस, तो यू विल सी आर डैश इज पी, आर डबल डैश विल बी टी डैश एंड टी डैश बाय इनफिनिट फॉर्मूलास कंबाइन। तो ट्रिपल डैश निकालेंगे अगर इसी का डिफरेंशिएशन द्वारा करेंगे, so it is kappa dash n plus kappa n dash, so n dash का फिर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं प्रॉपर्टी फॉर्मूले से। so finally r double dash is r triple dash is equal to this। okay, so यहाँ से देखो, यहाँ से क्लियर सी बात है कि अगर हम दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमें कप्पा मिल जाएगा, तो डैशेस में कप्पा निकाल दें, ये तरीका। दूसरा अगर हम इसका और इसका क्रॉस लेते हैं तो t क्रॉस n बन जाएगा हमारे पास b। okay, so r dash cross r double dash is equal to kappa t cross n, that is kappa b। और अगर हम दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लें तो यहाँ से भी कप्पा फाइंड आउट, तो वी हैव टू फॉर्मूलास, चाहे r डबल डैश का मॉड निकाल लो या वेल r डैश क्रॉस r डबल डैश, दोनों का क्रॉस निकालो फिर मैग्नीट्यूड तो भी आपका
सेम रिजल्ट आएगा, दैट इज कर्वेचर के। ओके, नाउ वी नीड टॉर्सन टॉप, तो उसके लिए हमें स्केलर टिपो प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। सो स्केलर टिपो प्रोडक्ट लेके यहाँ से व्हाट वी गेट, यहाँ पे बी है और यहाँ पे एन भी है, बी भी है और बी भी। जैसे क्रॉस लेंगे, डॉट लेना है, डॉट लेंगे तो बी डॉट एन 0 हो जाएगा, बी डॉट बी 1 बचेगा और बी डॉट के भी 0 हो जाएगा, तो बी लेफ्ट होंगे विद के इनटू टॉप। तो यहाँ से हमारे पास कप्पा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी कप्पा है और इधर भी कप्पा है, तो कप्पा कप्पा स्क्वायर हो गया और टॉप ये बन गया। वैल्यू ट्वाइस दिस, तो कप्पा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से प्लेस करना है, सो लाइक दिस। सो यू सी हमारे पास जो दोनों फॉर्मूलों में, टॉर्सन के फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं है, टॉर्सन का फॉर्मूला ही सेम, जस्ट डैशेस आर रिप्लेस्ड बाय डॉट्स। ओके, देखो यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट है, यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट, और डिनोमिनेटर में भी सेम चीज, लेकिन कप्पा के फॉर्मूले में चेंज है। ठीक है, यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर में आर डॉट का मैग्नीट्यूड का पावर 3 डिवाइड करना पड़ेगा, जबकि डैश के केसेस में सिंपली its denominator is 1. So keep in mind. So by using these formulas, now we will solve a question. Okay, the question is find the radii of the curvature and torsion of the helix. X is equal to a cos u, y is equal to a sin u, and z is equal to a u tangent alpha. Alpha is a constant here. So r is equal to this, r dot is this, u is parameter, so ये dots में हमने find out कर लिया, very simple, ये find out कर लिया। फिर हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, so this is क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, और क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे डिटरमिनेंट फॉर्म में निकालना इजी रहता है, so I J K के लिए और ये सब्स्टिट्यूट कर दी। So finally you got this. So इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है, so obviously स्क्वायर वाला रहेगा, इसका स्क्वायर निकालना है। This is very simple mathematics, plus 2 level mathematics। और ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है तो ऑब्वियस हमें क्या लेना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, और इस वेक्टर का, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। इन दोनों का डॉट लेंगे तो दिस डॉट दिस, दिस डॉट दिस 0 हो जाएगा, दिस डॉट दिस 0 हो जाएगा। तो इसका आयत का आयत के साथ, इसका इसके साथ, और यहाँ फाइनल 0 to 0। तो बाहर ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे तो ए क्यूब आ जाएगा वहां। सो पहले ए क्यूब विद दिस, तो यहाँ पे टेंजेंट अल्फा कॉमन आ गया, और साइन स्क्वायर यू प्लस कॉस स्क्वायर बन जाएगा। तो हमें आर डॉट का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, so we know the formula kappa is equal to this when r is depending upon parameter u। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू पुट कर दी, सो यहाँ से after simplification we get 1 upon a cos square alpha, और radius of curvature rho is 1 upon k, 1 upon curvature, so this is the reciprocal of that. So this is the radius of curvature, and in the case of torsion, the formula is scalar product of r dot double dot r double dot r double dot divided by magnitude of r dot cross r double dot per scale. So this is scalar product, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करके और इसका मैं फाइंड आउट कर रखा है। सो प्लीज a square cos secant alpha, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल स्क्वायर के पास ये बचेगा। So radius of torsion is nothing but it is sigma, that is 1 upon tau. So this is a cosecant x
second second. So that's all for this. Thank you.